Good morning, everyone from Open Sky Public School, Kanti. Your Dhiraj Srivastava sir is again in front of you. And again, we are going to discuss many important facts which is going to help you in your studies and going to make your lockdown phase a memorable one. So first, I will discuss about your online studies. You are studying well. Your teachers, they are supporting you. And I have just gone through your YouTube channel and more than 10 videos have been posted. There are some 62 subscribers of that channel. So it's going good. Thank you very much. Keep studying, keep gaining knowledge, keep skilling yourself. So the first discussion was on online studies, which is going on well. I am saying my salute to everyone, your teachers, all students, everyone. Now I will talk about grammar test series. So as per the discussion with Ranjana ma'am, we are sending you one quiz one quiz every day. And you must have received around 12 question series till Saturday, till today. Tomorrow on Sunday, you are going to get answers of all those 12 question papers. You are going to tally them. So your answer and the answers which we have given to you, you can tally, find out your mistakes, rectify them. If you feel that your concept is not clear, you are unable to understand the answers, you can raise your voice, you can tell us, and we are going to brush your gaps. So the purpose of these grammar series is to make your grammar strong, make your basics good, and only with the help of you all students, we can brush you. If you are not putting your thoughts in front of us, we will not be able to help you out. So please, wherever you are feeling a problem, there's a gap in concept, just highlight and we will brush it. So online studies are going on. Grammar series you are getting every day. You are going to enrich your grammar knowledge also. The most important thing which I am going to discuss today, that is tense. Tense is a ghost for most of us. We all know the basic things, present tense, past tense and future tense. But every now and then we feel problem in understanding tense, to crack it. And today we are going to crack it. Right? So I'm going to make you understand the tense with the help of timeline. And I'm going to take out this session of tense in Hindi so that I will be also able to explain you well and you will be able to understand it well. Fine? So tense को हिंदी में काल बोलते हैं and we have three types, तीन तरह के हैं हमारे. Past tense जो बात बीत चुकी है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान जो अभी हो रहा है, घटना घट रही है, एंड थर्ड इज फ्यूचर विच इज गोइंग टू हैपन जो आगे चल करके होने वाला है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब इन तीनों अलग अलग टेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में, वी हैव 4 डिविजन्स. ये भी आपको मालूम होगा. सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर. पास्ट कंटिन्यूअस, present continuous and future continuous, past perfect, present perfect and future perfect, and past perfect continuous, present perfect continuous and past perfect future perfect continuous. So simple है, continuous है, perfect है और perfect continuous है. ये 4 चीज़ें हैं जो 3 अलग अलग काल खंड में घटती हैं. अगर वो पहले घट चुकी होती हैं तो we call it past tense. अगर घट रही होती हैं, अभी आसपास की बात होती है, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. और होने वाली होती हैं इन फ्यूचर तो उनको हम फ्यूचर बोलते हैं. ये 4 + 4 + 4. अगर ये 12 स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएं तो टेंस बहुत ही आसान है आपके लिए. तो हम समझने का प्रयास करते हैं और स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से. सो पहले हम पास्ट को देखेंगे, किसी भी एक सिंपल में पहले पास्ट को देखेंगे, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर. ऐसे ही इसी क्रम में हम आगे जाते रहेंगे.
सो फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस, बहुत ही सिंपल है, नाम भी सिंपल, काम भी सिंपल। जो घटना भूतकाल में, पास्ट में घट चुकी है। मैं गया, मैं खाया, मैं सोया, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपल पास्ट टेंस में बोलते हैं। और इसका इंग्लिश बहुत ही सिंपल है। आई वेंट, आई स्लिप्ड, आई एट, आई रैन, फाइन। तो हम जो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है उसको हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। ईट, एट, रन, रैन, स्लीप, स्लेप्ट, और सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ दैट वर्ब, दैट इज गोइंग टू मेक योर सिंपल पास्ट टेंस। ये तो बहुत ही आसान है, आप सबके लिए सिंपल है बिल्कुल भी। अब जब हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट पे, तो हम पाते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ। और जनरली इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कुछ ऐसी घटनाएं बताते हैं जो कि हमारे साथ हर दिन रेगुलर रूप में घटती हैं। जैसे कि मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, हर दिन टहलने जाता हूँ, हर दिन खाना खाता हूँ। तो अपने इस रूटीन के बारे में ऐसी घटनाएं जो कि रेगुलरली मेरे लाइफ में घटती हैं, वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। सो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 AM, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई गो टू माई स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। आई स्लीप इन द नाइट एट 10 PM, मैं 10 बजे सोता हूँ, राइट। वह डेली खाना खाता है, ही ईट्स डेली, राइट। तो जो भी काम हर दिन घटता है, रेगुलर है, बार बार रिपीट होता रहता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बतलाते हैं। सो सिंपल पास्ट बहुत ही क्लियर था, जो घटना बीत चुकी है, मैं खाया, मैं गया, मैं आया। जो मेरे रेगुलर हैबिट्स में आती हैं, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, वो सिंपल प्रेजेंट हो गई। और जो काम मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, सो आई विल गो, आई विल स्लीप, आई विल ईट, राइट। तो ये बड़ा ही आसान है, ये तीनों, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। मेरे ख्याल से इसको समझने में आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो अगर हम पास्ट पे आते हैं तो वो खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। यानी कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, उस समय वो घटना घट रही थी। ठीक है। जब मैं राम के घर पहुंचा, कल जब मैं राम के घर पहुंचा तो वो खाना खा रहा था, यानी कि उस समय जब मैं पहुंचा उस समय वो घटना घट रही थी। When I went to राम्स हाउस ही वॉज ईटिंग। जब मैं उसके हाउस गया, घर गया, तो वो खाना खा रहा था। सो पास्ट कंटिन्यूअस इज वेरी सिंपल कि उस टाइम में, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम में वो घटना घट रही थी, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हम आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, तो अभी वो घटना घट रही है। मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, राइट। आई एम गोइंग, आई एम वॉचिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम ईटिंग, ये सारे हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो फ्यूचर के उस टाइम में हम इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर के उस टाइम में वो घटना भी घट रही होगी। अगर तुम कल मेरे घर आओगे तो मैं उस समय खाना खा रहा हूँगा। इफ यू विल कम टू माई हाउस एट 7 PM, आई विल बी हैविंग माई डिनर। तुम जब आओगे उस वो काम हो रहा होगा। सो चीज़ें वही हैं। अगर पास्ट में वो घटना घट रही होगी तो पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज स्लीपिंग। अगर अभी वो घटना घट रही है तो आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग। अगर फ्यूचर में वो घटना घट रही होगी उस पार्टिकुलर समय में, तो आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी ईटिंग। ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा है, सब कुछ उस समय के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस तो हमारा हो गया, सॉरी, परफेक्ट पे हम आते हैं, यानी कि जो काम खत्म हो गया, परफेक्ट, फिनिश्ड। तो अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, तो हम जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं पास्ट में, उस समय वो घटना थोड़ी देर पहले
घट चुकी थी। मैं जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन खुल चुकी थी, यानी जब मैं पहुंचा उस टाइम में वो घटना कंप्लीट हो चुकी थी। When I reached station, the train had already left the platform. जब मैं पहुंचा स्टेशन पे तो ट्रेन वहां से खुल चुकी थी, प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी। सो उस टाइम फ्रेम में वो घटना तुरंत तुरंत में घट करके खत्म हो चुकी थी। अभी मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, सो आई हैव ईटन, आई हैव रेड, यानी कि इस समय की जो तुम बात कर रहे हो, अभी कुछ ही देर पहले तुरंत वो घटना घट गई है। अगर पास्ट में घट गई है तो पास्ट परफेक्ट, अगर अभी घट गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर फ्यूचर में वो घट जाएगी तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। सो जब तुम मेरे पास आओगे मैं खाना खा चुका रहूँगा। When you will come to see me or when you will come to visit my house, I will have eaten my food. देखा आपने, सब बात उस टाइम फ्रेम की है। अगर उस टाइम फ्रेम में पास्ट में घटना घट गई तो पास्ट परफेक्ट, अगर अभी वो घटना घट चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और फ्यूचर के उस टाइम में अगर घटना घट जाएगी तो फ्यूचर परफेक्ट। आई हैड ईटन, आई हैव ईटन, आई विल हैव ईटन। फाइन। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पे, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये काम शुरू होकर उस समय में चलती चली आ रही होगी। शुरू पहले हुई और वहाँ से चलते हुए वहाँ तक अभी तक वो चल रही होगी। तो मैं खाता आ रहा था, राइट। आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। व्हेन ही रीच्ड माई हाउस आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। जब वो मेरे घर पहुंचा तो मैं सुबह से पढ़ता आ रहा था। यानी कि उस समय की जब बात आई पास्ट में, उस समय वो पहले से शुरू हो करके वो घटना चली आ रही थी। When he met me, I had been walking for 2 hours. जो मुझसे मिला तो मैं 2 घंटों से चलता आ रहा था। अभी अगर हम बात करें तो ये घटना पहले शुरू होकर के उस समय तक चली आ रही हो। 2 घंटे से बारिश होती चली आ रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours. सुबह से बारिश होती आ रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यानी कि अभी की जब हम बात करें तो वो घटना पहले से शुरू होकर के अभी तक चली आ रही है, इसीलिए वो कंटिन्यूअस है। हैज़ बीन लगा के बनाते हैं उसको। और फ्यूचर में बात करें कि अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँगा। तो when you are going to meet me at 8 AM, I will have been teaching for 2 hours. जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं 2 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूँगा। उस टाइम के समय में वो घटना पहले से शुरू होकर के वहाँ तक चली आ रही होगी। तो अगर आप इसको टाइम फ्रेम से समझेंगे तो समझना बहुत ही आसान है। इसका स्ट्रक्चर, इसका सिस्टम, पहले घटना घट गई, ये दैट इज़ सिंपल पास्ट। जो घटना हम अपने डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट। जो घटना घटने वाली है, आई विल गो, आई विल ईट। जो घटना उस समय में चल रही थी, घट रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी जो घट रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जो उस समय में घट रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो घटना उस समय में जस्ट घट चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट, अभी जस्ट घट चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, और फ्यूचर में उस समय जस्ट घट चुकी रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट। सेम पास्ट के उस टाइम में अगर पहले से चली आ रही हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी अगर चली आ रही हो पहले से तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर फ्यूचर में चली आ रही हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे सारे ग्रामर बुक्स में, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट टू अंडरस्टैंड दिस टाइम लाइन इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। आई एम ऑल्सो गोइंग टू सेंड यू अ टाइम लाइन photo with the help of Ranjana ma'am, which is going to make you understand what is the complete idea behind this timeline. Once you understand this timeline, this tense is a very easy thing for you. Fine. So we have discussed online studies,
we have discussed your grammar test series. It will keep on coming to you. Third, I have discussed tense in Hindi so that you can understand it all depends on the timeline, past, present, and future. And now I will discuss with you one spoken English tip. Very simple. I will request all of you that when you go to sleep in the night, lie down on the bed. Let jaiye. And then just think about the whole day. From morning to that particular time, what all things you have done. So I have just lied down and I'm just talking to myself. Today I got up in the morning at 5 a.m. Then what I did, I got ready and I had my breakfast. Then I went for my online studies. Then my mother called me. I talked to her. I helped my mom in few works. I went out with my father for some urgent work. And slowly like this, you can discuss the entire day with yourself in English while you are lying down. This is going to help you in thinking in English. Very simple tip, very effective one. And I'm going to end my video today with a story. And that story is about a lady called Arunima Sinha. 2011, 9 years back, she lost her leg. Left leg तो उसका पूरा कट गया. And right leg is having a rod. Somebody, while she was traveling in a train, some goons, some bad elements, they pushed her out of the train. She fell down on the other track, and before she could get up and run from that place, another train has crushed her leg. And then how she fought. Everybody was thinking that Arunima Sinha is not going to survive. She is going to be on a wheelchair for her lifetime. But she stood. She went to Bachendripal. And one by one, she has conquered 7 mountain peaks, including Mount Everest. So this corona pandemic time is going on. Everybody is telling, sir, it's a tough time. Economy is in danger. This is not happening. That is not happening. And that time, I pray to God. I thank Him that God, the most important thing which you have given me is my life. If I am alive, if I'm having energy in myself, if I'm having my brain, I can write my future. I can do whatever I want to do. So the most important thing which is there with all of us is our life. If life is there, we are fit and fine, we are going to take up any challenge. So I request all of you that go on your smartphone, go on Google, try to read the story of Arunima Sinha. How bravely she has fought against all odds, and now she has become a motivational speaker. She has become a great mountaineer, right? So all of us, all students and teachers and management team of Open Sky Public School Kanti, we all are going to be strong, and we are going to face this phase with smile on our face, courage in our heart. And I'm sure that we all are going to fly in great colors. This is going to be a fantastic time for all of us. So keep shining, keep rocking, keep remembering me. Whenever you have a doubt, you can reach to me with the help of your teachers and Ranjana ma'am. I'm always there for all of us. Right? So all the best to you. My best wishes. Thank you very much.